करिश्मा थोड़ी देर। मोनिका, you can start already. Recording start हो गया है। अमेकेवा पुण्यशाली, अमेकेवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आदे मैं निहारी, भगवाननी भूमिका आदे मैं निहारी, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, सत क्रमश मामो आस्वाद शुद्धिनो छे, सत क्रमश मामो आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद प्रशोधिनो छे, आस्वाद प्रशोधिनो छे, वंदनी वक्षकाश, वंदनी वक्षकाश, अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी, अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે, ના ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે, ના ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એ વિષાદવાદ વાણી, વિષાદવાદ વર્તન અને વિષાદવાદ વર્ણન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના ડૂબે, ના ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मानो उपदेशक साधु साध्वी के आचार्यों अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र पण अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા બોલે તો મને કુજુરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गमे ते लिंगधारी होय
તો તેના સંમતમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેદારી, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દુશ્મન લુગમાન પણ ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સામરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવન તત્વ મૃત્યુ પામનારું કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કિયા જાય, ના કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. ओके एक दूसरा शॉर्ट पद गाओ. हाँ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રડ મને લાગે, દાદા ભજનની રડ મને લાગે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારો, જીવન મારું બન્યું અકારો, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે, દાદા ચરણ મારે રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે આવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
दादांगी तुम्हारे गाऊं छे પ્રેમનું અમૃત પાવું છે પ્રેમ प्रेम अमृत पाऊं छे દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सचिदानंद वेरी जय गुड जय सत्य हसमुखान जी जय सत्यानंद जय श्री श्रेया श्रीमंत बुलाए प्लीज हसमुखान जी ओके जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ नमो अरिहंताणम् નમો અરિહંતાનમ नमो सिद्धाणम् નમો સિદ્ધાન नमो आयर्याणम् નમો આયર્યાણમ नमो वसायाणम् નમો વસાયાણમ नमो लोये सवसाहुणम् નમો લોહી સવસાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो પ્રેસો પંચન મુક્કારો सव पावपणासनो સવ પાવપનાસનો मंगलाणं च सौवेसिं મંગલાનમ ચ સૌવેસિં परमं हवै मंगलम् પરમં હવૈ મંગલ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॐ नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद okay Shreya daily prayer and then the study prayer Chennai Shreya जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं बुरी सोबत सर कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जय मात्र सेवा के लिए करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है मैं हमेशा खुद के साथ और इनमें सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निश्चय और शुद्ध बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं हे दादा भगवान मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी कृपया इस संबंध में मुझे अपनी तांत्रिक शक्ति प्रदान करें जय श्री हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें जय सच्चिदानंद Karisma हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान हे दादा Hey Dada भगवान Bhagwan हमें आपके बच्चे हमने हमें हम हैं आपके आपके बच्चे बच्चे दिल के हैं सच्चे
दिल के दिल हैं के हैं सच्चे सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर हैं भी फिर हैं भी कच्चे, हैं कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। करिश्मा जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. प्रिया શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. okay, very good. Shreya, are you happy today? हाँ आज एग्जाम था? हाँ आज थी कौन सी थी? इंग्लिश। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड. छोटी हाँ कैसा रहा आज आपको? हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा हैप्पी, रहा। वेरी गुड, हैप्पी. हाँ हाँ तो कल इंग्लिश हाँ रेडी? हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन करना। कब करेंगे अभी? कल सुबह। कल एग्जाम नहीं है? कल इवनिंग है एग्जाम। अच्छा, आफ्टर. वो कितना बजे होता है? 2 o'clock to 4:30। अच्छा, तो क्या 10 बजे उठ के बाद में स्टडी करने का है? नहीं, तो 6 o'clock। वेरी गुड. तो 6 o'clock सूरज दादा आते हैं क्या नहीं आते हैं? आते हैं। आते हैं. उसके पीछे उठने का. ओके. खुशी, हैप्पी? हाँ मैं आज हैप्पी हूँ। क्यों? आज मेरा तमिल एग्जाम अच्छे से गया। अच्छा, यानी 100%? नहीं, तो पता नहीं वो रिजल्ट आएगा तब। कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैं 50 to 60। 50 out of 50? नहीं, 100 out of 50 या फिर 60। 50%? हाँ हाँ। ओके. मोनिका, आर यू हैप्पी टुडे? नहीं आज मैं हैप्पी नहीं हूँ। किस किसको परेशान किया? मैंने आज मम्मी को किया था। किसको? मम्मी को। मम्मी को. आपको और मम्मी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं दादा, आज मैंने सारी हेल्प की थी मम्मी को। बाद में एक काम के लिए मैंने मना किया कि मुझसे नहीं होगा अम्मा, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं तुम्हें यही करना है। तब मुझे बहुत उस समय गुस्सा आया और मम्मी डांटने लग गए। तो और क्या क्या फर्क पड़ता है आपने किया होता तो? किधर जाने का आपको? मोदी को मिलने जाने का था? नहीं तो खाने को भूख लगी थी? नहीं, तो टीवी देखने का था? टीवी नहीं है दादा। ओ, आपके घर पे नहीं है तो मोबाइल देखने का था? नहीं, तो मुझे क्या उस फर्क? समय मम्मी हाँ. ने बाहर भेज रही मम्मी बाहर भेज रही थी और मुझे बाहर जाना पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। वो बाहर जाने के मैंने क्या शॉपिंग में जाने का था? नहीं, मम्मी ने कहा ग्रोसरी थोड़ा सब्जी लेकर आना हाँ, है, तो तो मैं वही शॉपिंग ही होता है ना, ग्रोसरी भी शॉपिंग होता है. बाद में कौन गए? नहीं गई थी वापस। अरे बाप रे बाप. ओके. दीपक जी, क्या? क्विकली हसमुख आनंद जी को
नंबर 3 गोट की इस कहानी क्विकली बता देना। जय सच्चिदानंद। दशमुखानंद जी, अ, स्कूल के दो लड़कों को मजाक करना सोचा उन्होंने। वो 3 बकरियों को लेके आए और ऊपर लिखा 1, 2 और 4 नंबर, और स्कूल में छोड़ दिया। स्कूल बंद होने के बाद उनका अंदर छोड़ दिया। तो दूसरे दिन सभी जगह पे स्कूल में वो सब बिगाड़ा था उन्होंने। तो ये लोग ढूंढने लगे कि क्या हुआ। तो उनको 3 बकरियां मिली, लेकिन वो तीसरी नहीं मिली। फिर तीसरी को ढूंढने के लिए उन्होंने सारे स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को, सबको छोड़ दिया कि ढूंढ लाओ उसको कहीं से भी। लेकिन वो मिली नहीं। तो फिर इसके ऊपर से ये लोग लेसन सीख देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हमें मिली है, लेकिन कुछ एक दो चीज नहीं मिलती या हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, तो हम परेशान होते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं कि वो किस तरह से मिले, कैसे मिले। लेकिन जो है उसको हम क्या बोले, एंजॉय नहीं कर सकते और उसका आभार भी नहीं मान सकते। इसीलिए उसके लिए कहा कि जो नहीं है उसकी फिक्र मत करो, जो है उसको भुगतान करो। जैसे दादा भगवान ने बताया, प्राप्त को भुगतान करो, जो अप्राप्त है उसकी फिक्र मत करो। उसके पीछे हम प्रयत्न करते रहो, लेकिन उसकी फिक्र नहीं करनी है। लेकिन जो प्राप्त है कितना सारा, उसके तरफ हम देखते तक नहीं है। और जो नहीं है उसके पीछे लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो बोले अभी आप सोच लो। तो ये बात है। तो इसके संबंध में अभी आप थोड़ा आपका अनुभव बताओ। नहीं नहीं, बाद में 1 मिनट ओके, बच्चे को पूछने ओके का ओके, बाद में। होमवर्क फाइन फाइन, बस ये स्टोरी था। हाँ, इट्स जस्ट बैकग्राउंड हसमुखान जी कि गोट नंबर अच्छी 3। स्टोरी है। बहुत अच्छा है। तो श्रेया, गोट नंबर 3 कुछ मिला? ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व नहीं किया, सब आप ही पास है राइट, तो कुछ जरूर नहीं है। ओके, तो किसको आप अप्रिशिएट किया आज? मम्मी मम्मी को। मम्मी को कैसे अप्रिशिएट किया? खाना बहुत अच्छा बना है। ओके, दूसरा? और एक ही बार। नहीं, दूसरा नो अप्रिसिएशन? दूसरा कुछ नहीं? ये बाहर के आए तो घर में आए तो हाँ माय हाउस, अप्रिसिएशन नहीं हुआ? फर्नीचर ये सब घर में अप्रिसिएशन नहीं कुछ किया? दादा है, दादा को अप्रिशिएट नहीं किया? बुक्स को अप्रिशिएट नहीं किया? आज अच्छा एग्जाम गया, अप्रिशिएट नहीं किया? शाबाश श्रेया, गुड जॉब। ऐसे कर सकते हैं ना इसको। यू हैव टू अप्रिशिएट एवरीथिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, जो कुछ है सब अप्रिशिएट कर। नहीं है तो बात की बात है। ओके छोटी, आई डोंट नो, आपका सुना था आपका ये स्टोरी? नहीं, ओके, वो तो मस्ती में ही चलती है। खुशी, आपके पास हाँ, कितना कितना गोट नंबर 3 मिला? मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया। आपको क्या ख्वाहिश है? हवा में उड़ने का कुछ ऐसा ख्वाहिश है कि किसके पीछे आप टाइम वेस्ट करते हैं? नहीं। नहीं? क्यों? पायलट मेरे को बनने का है, आपको बनने का है? हाँ, हाँ मुझे। तो वो तो गोल है, गोल के पीछे तो वो गोट नंबर 3 नहीं पता जाता है। करियर का गोल्स जो है अपना 1 2 3, दैट इज नॉट द गोट नंबर 3, दैट इज अ मस्ट।
study, health, and such all. दूसरा कुछ क्या आपको अप्रिशिएट किसी को किया आज? अप्रिशिएट नहीं किया। टीचर होता है, पापा होता है, मम्मी होता है, नोटी नोटी दीदी होती है, अच्छी दीदी होती है, बुरी दीदी होती है। वो बुरी दीदी को भी अप्रिशिएट करना मांगता है ना। हाँ? खाना मिला था क्या आज? कि आज भूखा रखा मम्मी ने? नहीं, खाना मिला था। तो वो भी अप्रिशिएट नहीं किया। ए दादा भगवान, थैंक यू, आज तो हमको खाना मिल गया। Hey, बच्चे लोग, नहीं। you must spend 5 minutes a day to appreciate what you have. आपको मालूम है देश में कितना आपके जैसे बच्चे लोग को बस कुछ नहीं है, वेरी लिटल है। मालूम है आपको? कपड़ा पहनने का नहीं, वो नहीं है वो। दैट इज व्हाई यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। ओके मोनिका, आपको गोट, आपके पास तो बहुत गोट्स है। नंबर 3। हाँ, आज मुझे गोट नंबर 3 में ये आता है, मैंने एग्जाम तो लिख दी है, बट कभी कभी रिजल्ट का आता है, अगर कम आ गया या फिर ये हो जाए, ये चलता रहता है। वो और तो मम्मी की वो गोट नंबर 3 नहीं है, दूसरा बोलो। अभिषेक आज मैंने किसी को नहीं किया, और गोट 3 अभी रियली सोचो अप्रिशिएट करने। ओके, यू मस्ट अप्रिशिएट व्हाट आपके पास है। बिकॉज अभी देखिएगा दुनिया में कितना आदमी लोग के आपके पास जो है नहीं है उन लोग के पास। स्टिल पीपल आर हैप्पी, अप्रिशिएट करते गए ये। यू नो, हम इंडिया में आते थे तब वो स्कूटर वाले के रिक्शा के वाले जाते थे, अप्रिशिएट हो जो को वो क्या, 30,000 रुपया मिल रहे, 21,000 बहुत हो गया। अप्रिशिएट व्हाट दे वर गेटिंग, यू नो। आपके पास तो डजन चंपल है, डजन ड्रेस, 5 डजन ये ड्रेस है, वो है, वो अप्रिशिएट करना मांगता है। ओके, हसमुखा का अभी आप बात करिए, सुना आपको एप्रिसिएशन। अभी हैप्पीनेस तो कुछ आया, अभी एप्रिसिएशन का भी उन लोगों को रियली मस्ट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। ओके, ओके। तो क्या हमको जो जो भी प्राप्त हुआ है उन सभी चीजों का हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो नहीं प्राप्त हुआ है वो अगर हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसे, ये रजनी दादा ने बताया ना कि दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनको आज खाना नहीं मिला है, बरोबर है? कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कपड़ा नहीं मिलता है। तो हमको अगर कुछ नहीं मिले तो हमको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई आज आपकी पुण्य कितनी अच्छी है। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट क्या होना चाहिए कि आज हमको डेली टू डेली हमको इस सत्संग की बातें सुनने को मिलती है, वो सबसे बड़ी अप्रिशिएट हम कर सकते हैं। बाकी कितने ऐसे लोग हैं कि मनुष्य अवतार में आके उनको कभी सत्संग की बात भी सुनने को नहीं मिलती है। दादा भगवान की बातें, दादा भगवान का शब्द, दादा भगवान का ज्ञान उनको कभी सुनने में भी नहीं मिलता है। और आपको खुद को अगर अप्रिशिएट कर सकते हो कि इनके इतने सारे वर्ल्ड, इतनी सारी पॉपुलेशन के बीच में हमको ऐसे दादा भगवान के आपतो पुत्र मिले, ऐसे सारे महात्मा मिले, ऐसा दही सच्चिदानंद संघ मिला, तो वो तो बहुत बड़ी अप्रिसिएशन की बात है। और उससे भी अगर आप थोड़ा और कम करें तो भाई इतना अच्छा हमको रहने को घर मिलता है, ऊपर छत मिलती है, ऐसे हम कहीं से भी कुछ भी चीज होती है तो हम उसको अच्छी तरह से देखेंगे तो ही उनको हमको सारी चीजें अप्रिशिएट लगने लगेगी कि भाई इतने अच्छे साफ सुथरे कपड़े कपड़े हमको पहनने को मिलते हैं, ये छत वाला मकान मिलता है, ऊपर लाइट मिलती है, पंखा मिलते हैं। ऐसे हम देखे ना रोड पे, कहीं कभी गाड़ी में हम चल चल के जाते होंगे तो हमको देखते होंगे तो आजू बाजू कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में लाइट भी नहीं है, और कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में सोने के लिए वो पलंग भी नहीं होता है। तो हमको वो सब चीजों के ऊपर हम जितना जितना देखेंगे तो हमारे पास जो चीज है उसकी हमको वैल्यू धीरे धीरे आती जाएगी। और अगर
हमारे चीज के पास जो है उसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो आगे के ये उन्होंने बताया ना कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी चिंता में हमारे पास जो चीज है उसका हम भोग भी नहीं सकता है। हम गुजराती में हम के भोग नहीं सकते। भोगत तो भोगत नहीं हमारे पास, सकता। हाँ, भुगत नहीं सकते। तो हमारे पास जो जो चीज है वो हम किस तरह से अच्छी तरह से भोगे। तो उसके लिए हमको क्या देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या नहीं है वो देखेंगे, तो उसकी चिंता में और उसके पीछे रघवाट में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। और हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे, तो वो सारी की सारी चीज हम अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, और हमारे जीवन में इतनी शांति रहेगी। और कविराज का भी एक पद लिखा हुआ है कि अप्राप्त चिंताग्निमा वर्तमान सड़क से, ऐसा कविराज का पद है। तो जो चीज हमको प्राप्त नहीं हुए उसकी चिंता में उसके पीछे कैसे ये मिले कैसे वो मिले, उसकी चिंता में हमारा जो वर्तमान है अभी का जो समय है वो हमारा बिगड़ जाता है। अंदर से वो तो बोलते हैं सड़क तुरे છે हम अंदर थी, अप्राप्त ने चिंताग्नि में वर्तमान सड़क से। तो कि जो चीज हमको प्राप्त नहीं है उसकी चिंता में, और वो किस तरह से मिले क्या मिले, तो कि वो उसकी चिंता में पूरा अभी का जो अच्छा समय है वो भी निकल जाता है। और प्राप्त की चिंता, अगर हम हमारे पास जो प्राप्त है वो हम देखेंगे तो हम उसका भुगतान अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमको अगर देखना है तो क्या देखेंगे, तो कि भाई ये इससे तो हमारा बहुत बेटर है, और हम किस तरह से अभी की जो जो चीज है वो हम किस तरह से उसका यूज करेंगे, तो उसको हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। कि हमको इतने सारे मम्मी पापा मिले, इतना सारा अच्छा मकान मिला हुआ है, इतनी ज्यादा भगवान की बातें मिली हुई है, हमको इतना अच्छा अच्छा रोज साफ सुथरा खाना मिलता है, साफ सुथरा पानी मिलता है। हर एक एक चीज आप देखेंगे तो सब चीज को हम अप्रिशिएट कर पाते कि भाई अच्छा, सुबह उठते ही हमको मम्मी चाय नाश्ता देते हैं। ऐसे कितने ही बच्चे लोग हैं कि जिनको सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलता है। तो अच्छी स्कूल मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, सब कुछ मिलते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें, एक एक चीज का हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसका उपकार, भगवान का उपकार मानना चाहिए कि हे दादा भगवान, क्या हे भगवान, आपने हमको इतनी सारी चीज दी है, पर और उसके लिए हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तो ये अप्रिशिएट करेंगे और उनका उपकार मानेंगे, तो धीरे धीरे ये चीज की वैल्यू हमको मालूम पड़ता है। और जो चीज नहीं है, बरोबर है, आप अगर बस में या स्कूटर में जा रहे हो तो आप किसी की गाड़ी देखे होंगे कि मेरे को ऐसी गाड़ी है लेनी चाहिए, मेरे को ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो जो स्कूटर की मजा है वो भी चली जाएगी, और गाड़ी की मजा तो जब मिलेंगी तब मिलने वाली है। लेकिन अभी जो है हमारे पास, तो उसकी हम वैल्यू करेंगे, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, तो धीरे धीरे वो उनके अंतराय जब टूटेंगे तो वो भी अपने पास आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास जो है उसको हर एक चीज का हमको अप्रिसिएट अंदर से होना चाहिए, उसका उपकार होना चाहिए। सारी सारी चीज आप सुबह से लेके शाम तक अगर एक बार आप देखोगे ना, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिसको आप अप्रिसिएट नहीं कर पाओगे। ऐसे इतनी सारी सारी सब चीजें हैं। सुबह उठने के तक से, सुबह उठने से रात को सोने के टाइम आप देखो ना, तो कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जो अपने कुदरत ने और अपने मम्मी पापा ने आपको प्रोवाइड किया है। सारी कितनी अच्छी स्कूल दिया है, स्कूल में जाने के लिए अच्छा ड्रेसेस होता है, उसकी फीस भरने की चिंता नहीं है, बरोबर ना, सिर्फ पढ़ाई की चिंता है, खाने खाने कमाने की चिंता नहीं है। वो सब चीज आप देखोगे ना, तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे। बाकी ऐसे कई भी लोग हैं, आप कहीं कभी कभी बाहर जाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे कितने बच्चे को ऐसा होता है कि उसको रहने का भी ठिकाना नहीं होता, पढ़ने के तो बहुत दूर की बात रहती है, एक एक हफ्ते तक उनको स्नान करने का भी मौका नहीं मिलता है। तो आप जब वो सब देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बरोबर है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको रोज का रोज हमको सत्संग मिलता है। वो चीज को आपको बहुत ही सारे अप्रिशिएट करोगे। ये तो आपको अभी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 साल जब आप देखोगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमको डेली टू डेली सत्संग मिलता था। तो वो भी डेली के डेली आपको आफ्ताब की बातें सुनने को मिलती थी, महात्माओं का अनुभव सुनने को मिलता था।
डेली का डेली कविराज का पद सुनने को मिलता था, डेली प्रेयर करने को मिलती थी। वो तो बहुत ही बड़े अप्रिशिएट करने की चीज है। ऐसा ऐसे तो बहुत सारे जो राजा महाराजा होता है ना, उनको भी डेली सत्संग नहीं मिलता है। बहुत सारे करोड़पति लोग होते हैं ना, उनको भी डेली ऐसा आधा घंटा 1 घंटा का सत्संग या भगवान की बातें सुनने को नहीं मिलती। ये अगर आप सोचोगे ना, तो वो तो बहुत बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। बरोबर है ना रजनी दादा? बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, रिलेटिव की बहुत पुण्य होती है। वो तो उसको गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, लेकिन ये सत्संग नहीं मिलता है। तो आप लोगों को तो वो बात तो बड़ी अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि भाई रोज के डेली टू डेली हमको सत्संग सुनने को मिलता है। तो वो तो बहुत बड़ी बात है। देखो, ये अप्रिसिएशन हो करेंगे तो आप विल बी मोर एंड मोर हैप्पियर डे बाय डे। तो हम्म। 5-10 मिनट तो अप्रिशिएट करने का वो आपका एनर्जी और हैप्पीनेस बढ़ा देगा। और कल श्रेया कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं, कल कल छुट्टी है। हॉलीडे। परसों कौन सा है? मैथ। मैथ तो तोरल का भी मैथ होगा ना। और ये कल चिन्नई का इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश है। ओके। और एक चीज ये मोनिका दीदी ने बोला कि रिजल्ट की ख्वाब देख के ये होगा वो होगा, फेल होगा कि कितना परसेंटेज आएगा। तो अभी अभी ये क्या चल रहा है हंसमुखा का एग्जाम? तो मोनिका के एग्जाम तो खत्म हो ही गई, 2 वीक हो गया, हम्म। और 1 वीक हो whatever। हाँ, अभी एग्जाम रिजल्ट आएगा, मई में आएगा। तो अभी से हम्म। वो पतली दुबली ये खुशी को मारने की तैयारी करती है। नाइस। हाँ, ये क्या चीज है? और दीपक दादा, आपको भी कुछ कहना है क्या बोलने का? ओके, पहले हसमुख आनंद जी। हाँ, हाँ, बोलो। नहीं वो क्या बताया, क्या बोला मेरे को मालूम नहीं पड़ा, बीच में थोड़ा कट हो गया था ना। अच्छा, ओ ओके, मेरा क्या, ओके। तो मोनिका ने बोला ना कि अभी चिंता, और मोनिका के एग्जाम 1 वीक पहले खत्म हो गया, और हाँ, शी हाँ, इज हाँ। इन द 11th स्टैंडर्ड। ओके। अच्छा, हाँ। तो बोर्ड एग्जाम होती है ना। तो अभी व्याधि करती है कि क्या होगा, पास होगा, वो होगा होगा। और खाने का अच्छा नहीं लगता है, और टेंशन में, और खुशी को मारने की तैयारी करती है, और सब चलती है। हाँ, तो अभी तो एक बार हमने एग्जाम दे दिया है, तो फिर उसका रिजल्ट की चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है। बराबर, हमको क्या करने का है कि अभी आज के दिन में हमारे पास क्या काम है, आज के दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। बराबर है। जिसका हमने एग्जाम दे दिया है उसका तो रिजल्ट जो टाइम पे है वो टाइम पे तो आने वाला ही है। लेकिन उसकी चिंता करने से कोई रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला नहीं है, या उसके बारे में सोचने से भी कोई रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है, तो कि आज के दिन में हमारे सामने क्या है। बरोबर है। तो उसका हमको कुछ आयोजन करना चाहिए कि आज हम क्या कर सकते हैं, आज के दिन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम हमारे दो भूल में से हम बाहर निकल सकते हैं, आज के दिन में हम क्या सकते हैं। वो बात सोचेंगे, अगर पॉजिटिव बात जितना जितना हम सोचेंगे ना, तो धीरे 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 नेगेटिव बात धीरे 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 कम होती जाएगी। तो हमको वो सोचने का भाई कि एक बार हमने एग्जाम दे दिया है, तो उसका रिजल्ट तो जो भी है वो उसके समय पे हमको आएगा, लेकिन उसके बीच का जो टाइम है, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से हम दो चीज और सीखे। बरोबर, हम घर में हेल्प करें या दूसरी कोई एक्टिविटी करें, लेकिन रिजल्ट की चिंता करने से रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके लिए उसकी चिंता अभी छोड़ देने की है। बरोबर है। लेकिन अभी जो बीच का जो टाइम है, वो टाइम किस तरह से हम अच्छी तरह से निकाले, उसकी प्रोसेस में ही हमको डे टू डे होना चाहिए। बरोबर है। दीपक आनंद बराबर। जी कुछ बोलिए आप। यार, और हम्म। ट्वेल्थ ट्वेल्थ का भी सोचने का होता है, और दैट इज नॉट गोट थ्री। ओके, ट्वेल्थ का भी हम्म। सोचने का होता है, नहीं, सब वो तो सब्जेक्ट प्लानिंग में में आता क्या है। करने का, हाँ, हाँ। कॉलेज कॉलेज में क्या करे जाने का, वो कोई वो भी अभी जब टाइम है तो ये करने का, दिस नॉट गोट नंबर 3। ओके, बिकॉज दिस इज योर गोल। और आपका जो गोल होता है, उसके पीछे तो बहुत बहुत मंथन करने का होता है। ओके, दीपकांत जी।
दीपकान जी, हेलो दीपक, संभળાય છે? Yes, now I can. एक मिनट, अभी भी मेरी आवाज आती है? हाँ, ब्रेक यस, आती है ना? आती है। ओके। जहां हम सक्सेसफुल गए हैं, तो वहां तो आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करो। और हमें डैडी मम्मी मिले हैं, आपको तो दो दो सिस्टर मिली है, तो वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो आपकी सिस्टर है कि आपकी कॉम्पिटिटर है? हाँ, सिस्टर यानी कॉम्पिटिटर नहीं होती है, लेकिन आप जैसा देखोगे तो उसकी असर आएगी। तो यू आर सो लकी। तो उसको आप इस तरह से आप अप्रिशिएट करेंगे। और जो इन लोगों से कुछ भी होता है, तो वहाँ वो आपकी कमजोरी है। जैसे मम्मी के साथ जो कुछ हो जाता है, इन लोगों के साथ, किसी के साथ भी हो जाता है, तो उसको समझ लो कि वो मेरी कमजोरी है। और ये कमजोरी है ना, ये मुझे कभी भी गिराएगी। ऐसा नहीं है? हाँ। तो और जब हम सीख रहे होते हैं, सीख रहे सीखते वक्त हमारे पास कोई चॉइस होती है? और चॉइस रखनी चाहिए। अगर आप चॉइस रखेंगे तो आप सीख पाओगे। तो अभी तो क्या है, मम्मी जो भी कुछ कहते हैं ना, तो अंदर से भी कई बार उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्ट होता है। बाहर से भी आप ना बोल देंगे, मना कर देंगे, लेकिन अंदर से एवरी डे हमें तय करना है कि मम्मी जो कहेगी मैं करूंगी। बोल सकेंगे आप ऐसा? हाँ, बोलो ना। हाँ हाँ बोला, हाँ बोला। हाँ, देखो, दीपकान जी, you need to ऐसा wrap है। it up, हाँ, also. हाँ, 2-3 minutes. तो इसीलिए अभी एक्चुअली क्या है, ये अच्छी क्लिप आई हमारे पास, और हमें एक हमारी पॉजिटिविटी ओपन करने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसे उसको एन कैश उसका बेनिफिट ले लेना है। और जब जितना आपको मम्मी ज्यादा काम देंगे या कुछ भी ऐसा होगा ना, तो आप और भी पक्के हो जाओगे। तो पक्का होना अच्छा है कि कच्चा रहना अच्छा है? अपने आप को सोचो। और जब प्रैक्टिस होती है ना, यू मस्ट प्रैक्टिस रिगरसली, ऐसा बोलते हैं, पता है? तो जब रियलिटी आती है ना, तब आप एकदम इजी हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम में रिगरस प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर जब एक्चुअल केस आता है, लिविंग लाइफ सिचुएशन आती है, तो आप वहाँ डर जाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रिगरस नहीं थी। समझ में आया? मम्मी को कुछ कहने का, डांटने का मौका ही नहीं देना है, ऐसा आप तय करो। करोगे? वो घमंडी जवाब नहीं दूंगी, वो तो कर दिया। लेकिन हमारे प्रेयर में और भी इस तरह से जो जो हम कमजोरी जहाँ जहाँ आती है, उसको ऐड करते रहना अपने आप, प्राइवेटली। बाहर बोलेंगे कॉमन में, तो कॉमन प्रेयर ही बोलेंगे। लेकिन इस तरह से क्या होगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप परफेक्ट हो गए ना, तो ये पीछे आपके दो बड़ी बहन है ना, उनको भी अच्छा मौका मिल जाएगा कि ये छोटी बहन ने पक्का कर दिया, तो अभी हमको करना पड़ेगा। खुशी ऐसा नहीं है? क्योंकि लिविंग एग्जाम्पल इज द बेस्ट इंस्पिरेशन। लिविंग एग्जाम्पल अगर हमारे सामने होता है, तो इस तरह से, तो अभी आपको बाहर से अप्रिशिएट करे ना करे वो संजोग है, लेकिन अंदर से वो यू हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, बोलते हैं थैंकफुलनेस।
आपको मम्मी खाना खाना बना के देती है कि आपको बना के खाना पड़ता है? मम्मी बना के देती है। अभी बोलो तो कितना लकी है ना आप। इस तरह से सभी चीजों को आप इवेल्युएट करो, और जो जहाँ कम लगता है, जहाँ बोलते कि आपको जो मिसिंग या अनफुलफिल्ड डिजायर है, तो हमें क्या बताया है? दादा भगवान को फोन करो कि हमें ये करना है, हमें करवा के दो। जय सच्चिदानंद। ख्याल में आया? हाँ। हमारी डिजायर फुलफिल करेंगे दादा भगवान। समझ में आया? हाँ। तो मम्मी के साथ किसी के साथ भी उलझने की जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वो दादा को प्रेयर में रख दो। देन इट इज दादा ड्यूटी कि वो मम्मी को इंस्पिरेशन देंगे। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? तो इसे इसे आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और बाहर एडजस्टमेंट आएगा। क्या बताया? बाहर एडजस्टमेंट आएगा और इंटरनली स्ट्रांग हो जाए। तो ये तो अच्छा है ना? हाँ। राइट? जय श्रेया कुछ सच्चिदानंद। सो बोलती देन नहीं यू है, विल ओके ऑलवेज जय बी हैप्पी। यू विल नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ अनहैप्पीनेस। और जैसे बताया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, तो वो हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल भी यही सोचने का, ये करने का, गोट नंबर 3 एंड अप्रिसिएशन। ओके, जय सच्चिदानंद। ऑल द बेस्ट खुशी। हाँ। जय ऑल जय द सच। बेस्ट। जय सच्चिदानंद एग्जाम के लिए सभी को।